Okay, good afternoon, students. Is it visible? Yes, sir, it's visible. Okay. So in the last claim, we have completed the practical one, right? In that we have seen select star from account, right? So when you type this select star from account, you will get all columns and all rows, right? All columns and all rows. But if we want to display only few columns, for that you can write here specific column name. Then you will get only those columns, right? But if you want to display only few columns and few rows, then you can use the where clause where uh, let's say account number is equals to A001. So you will get only few column and few row. Now next variant we have seen all column few row. So this is all column and few row. So this way you have completed practical 1, right? Now practical 2. So every time this is the common instruction for you. A practical in every lab whenever you come or join, open the practical list. It means syllabus from the content. Open the practical list, so you can get the questions from there, right? So this is our account table. Now for that we need to understand few commands. Just wait for a few minutes. Okay, so first command is the update command. Most of you have one question in your mind, and some of you have asked me this question, sir. If we have made the mistake in while we are inserting the data, for example, instead of Patel Jigar, I have inserted this name. So how I can delete it or how I can change it? Now it's time to learn that thing, right? Previously, we have seen create the table, insert the data, display the data by using the select statement and structure of the table, right? Now, we are going to change or update the data. So, for that, update command is used. Update is the command. Then you need to write the table name. Then set is the keyword. It means on which table you want to update, that you need to write table name. Now set what you want to set, that you need to write here. Then after comma dot it means you can update multiple columns, multiple cell at a time. And then after where, it means whenever where you want to update, कहाँ पे आपको अपडेट करना है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको पटेल इधर की जगह पटेल हिरेन ऐड करना है, ठीक है?
पटेल जिगर की जगह आपको पटेल हिरेन ऐड करना है। तो सिंपल अपडेट अकाउंट, लेट मी रन सो यू कैन गेट द आइडिया। पटेल जिगर है ही नहीं हमारे पास पटेल मितेश है, तो पटेल मितेश को मैं अपडेट करूंगा। अपडेट ऑन विच टेबल वी वांट टू अपडेट? अकाउंट, दिस इज टेबल नेम अकाउंट। सेट, क्या सेट करना है? पटेल, let's say Patel, new value you need to provide here, right? Let's say Rola Nitin, where name is equals to Patel Mitesh। जहां पे पटेल मितेश है वहां पे हमें नेम ऐड करना है रोला नितिन, right? So this is set is the new value, and here in a where it will find, it will search, जैसे आप वर्ड में करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस, लाइक दैट। तो फाइंड एंड रिप्लेस पटेल मितेश, जहां पे वहां पे one row updated। Let's check select star from count। So here instead of Patel Mitesh, Rola Nitin is there, right? Now next question, sir, can we change by using some other value? Yes, you can. For example, account number is equals to a a a 001। If we want to change the name of those candidate whose account number is A001, so identify account 001, this one। so इसका नेम क्या होगा? रोला नितिन। उसका हमें चेंज कर देते हैं, कुछ पटेल जिगर कर देते हैं, ठीक है? पटेल जिगर। फिर आप बोलेंगे सर उसका सिटी हमें चेंज करना है, देन कोमा सिटी is equals to let's say Goa, right? So first it will identify this row, and you can update these two particular cell of that row. If you want to change entire row, you can like this way. I will give you the demo for 2 column. Let's check. This is the beauty of SQL. You can ask the question by yourself and you can give the answer by yourself. देखिए पटेल जिगर हो गया, गोवा भी हो गया, ठीक है? Now next question. If I write here Patel Jigar instead of Patel Hiren, what will be the output? You can see here we have a duplicate row, Patel Hiren and Patel Hiren. Entire row is duplicated, 2 times Patel Hiren है। So वो 2 row update होगी, clear? If we have a duplicate row, then it will be updated as a let's see. Now question is that in an account number we have same account number, so if I update in any one row, then it will update in a both row. How we can avoid this one? So simply primary key, use the primary key. In this table we have not set the primary key. In a tutorial 3 we will set the primary key, so it will not allow to enter the duplicate value। यहाँ पे A005 2 टाइम्स है, प्रैक्टिकल 3 में आपको अलाउ ही नहीं करेगा डुप्लीकेट वैल्यू में। हाँ नाम पे होगा,
नाम पे डुप्लीकेशन हो सकता है, लेकिन वन कॉलम विल बी यूनिक. सो बेस्ड ऑन द यूनिक कॉलम यू कैन सेट एंटायर, यू कैन चेंज द एंटायर रो. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अकाउंट नंबर यूनिक है, तो अकाउंट नंबर यूनिक लेके सपोज A001 लिख रहे हो, तो वो आप यूनिक हो गई एक, तो इससे आपको एक ही रो मिलेगी. दैट इज द एडवांटेज ऑफ प्राइमरी की. In this table we have not implemented the primary key, that's why it allowed to enter the duplicate row. Clear? सर A001 ही प्राइमरी की ना कि We can call it primary key, but in this table we have not set the primary key. We can call account number as a primary key on paper, but we have not implemented that primary key in our table. Whenever we have created the account table, at that time we have not set account table as a primary key. सिर्फ दिख रहा है, हम कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर है, मशीन को बोलना पड़ेगा ना इस ये प्राइमरी की है. जैसे आप ईआर डायग्राम में अंडरलाइन करते हो तो पता चल जाता है ये प्राइमरी की है. So similar way here we need to set primary key as a column, right? So that we will learn in a practical 3. So remember this one. Fine. I hope all of you are getting. Any query? No, sir. Okay, fine. Let's move to next. Alter command. Okay. Whatever we have discussed, it's all about the data, right? अकाउंट टेबल में जो भी डेटा था उसको अपडेट करने का तरीका हमें पता चल गया. आप बोलोगे सर टेबल की कॉलम नेम ही हमें नहीं पसंद है, चेंज करनी है, या फिर एक कॉलम ऐड करना भूल गया, या फिर एक कॉलम हमें अभी नहीं चाहिए डिलीट करनी है, या फिर उसकी डेटा टाइप साइंस चेंज करनी है, then how we can do that thing? So there is one command alter is used to change the structure of the table. Alter command is used to change the structure of the table. Structure, it means column name, data type, size, right? So this many functionality we can perform. Add a column to existing table, rename any column, change the data type or size, the modify the size, alter. We can drop the column. Drop the column, it means delete the column. Now let's see. First we will add the column. So for that, alter table. Table is the keyword, so you need to write it mandatory. अगर आप आंसर में नहीं लिख रहे हो तो 0 मार्क्स, क्योंकि ऑनलाइन में आप परफॉर्म कर लेंगे. ठीक है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, सपोज टेबल कीवर्ड नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, अनरन कर रहा हूँ, तो क्या होगा? एरर आई इनवैलिड अल्टर कमांड. इट मींस आपको याद आ जाएगा टेबल कीवर्ड मिसिंग है, लेकिन ऑन पेपर आप जब लिखेंगे तब कंपाइलर नहीं होगा, एरर नहीं होगी. तो आपको ये सिंटेक्स याद रखनी है. हाँ, आप सबको स्क्रीनशॉट या फिर नोटबुक में लिखना है तो लिख लो. आई एम नॉट गोइंग टू शेयर दिस टेक्स्ट फाइल विथ यू, राइट? ओके. सो अल्टर टेबल अकाउंट, कौन सा टेबल? टेबल कीवर्ड है. देन टेबल नेम, देन दिस इज द टेबल नेम. हमें क्या करना है? ऐड करनी है कॉलम. कौन सी कॉलम? दैट कॉलम नेम एंड डेटा टाइप एंड साइज यू नीड टू मेंशन इनटू द ब्रैकेट. लेट्स सी here. Alter table account, add address varchar to 30. It means in account table we are adding the address column with the size 20, data type is varchar 2. Okay, run it. Now how can you check whether the column is added or not into your table? कुछ वैल्यू ऐड करके How we can check, students, online students? Sir, same way. Select star from. Okay, good. Select star from account, right? This is one way. Is there any another way? Is there any another way to check whether the column is added or not? हिस्ट्री में सर Yes, good. Describe account. Yes, you can check here. So both this way
you can check. Here address column is added at last, but without data. This it means no data, right? Now if you want to insert the data, you can insert it by using insert command, जो आपने पहले किया था ऐसे ही, ठीक है? But sometimes in some fields they are giving by default values. They are giving by default values. If you want to use that by default value, okay? हाँ, one more thing, if you want to add multiple columns, then यहाँ पे comma करके add कर दो, like this alter table, comma first column, comma second column, data type size third column. Clear? Now default value अगर आपको उसमें देनी है तो यहाँ पे सिर्फ आप alter table account add column name, date and default is the keyword, and then give the value. Give the value. For example, I am writing here January 0121. Add ये डेटा, ये कॉलम नेम है, ये उसकी डेटा टाइप है, डेट में साइज नहीं आती वरना साइज देनी पड़ती, और डिफॉल्ट इज द कीवर्ड एंड डिफॉल्ट वैल्यू विल बी दिस वन. लेट मी रन. Sir, can you explain this default once again? Yeah. Let's start from so you can see the difference. First we have added the address column, but without default value, so it display this that it means no data. By using this syntax, alter table account add dob date, I have added one more column with default keyword and default value. It means you can see here default value in all rows is displayed. This is the difference. आपको by default पहले से कुछ value देनी है तो. Am I communicating properly? Are you getting? Yes, sir, clear. Okay. Yes, sir. Okay, fine. ठीक है, अगर देनी है तो गुड. नेक्स्ट कॉलम ऐड हो गई तो आप बोलेंगे सर रिमूव करना हो तो वो भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले we want to do some experiment on this column, so that's why I'm not explaining delete the column. I will explain it last. So first we will see the modify the existing column. Modify existing column, it means if we want to change something like data type, size, then we can change it. चेंज करने के लिए मॉडिफाई कीवर्ड है, चेंज करने के लिए मॉडिफाई कीवर्ड है. ये आगे का तो सेम रहेगा, अल्टर टेबल टेबल नेम वो सेम रहेगा. मॉडिफाई कीवर्ड नेक्स्ट आपको यहाँ पे मेंशन करना है. लेट मी टाइप इट, बट बिफोर टाइपिंग लेट्स चेक. फाइंड टेबल अकाउंट में एड्रेस की साइज कितनी है, वेरकेर 20, राइट? वी आर गोइंग टू चेंज दैट साइज. अल्टर टेबल अकाउंट वेरकेर to 30, so size will be changed. आपको सिर्फ यहाँ पे साइज नहीं, कौन सी कॉलम में कौन सी डेटा टाइप में साइज चेंज करनी है ऐसे ही लिखना है. जैसे आप यहाँ पे ऐड करते रहते हैं, यहाँ पे आप ऐड कीवर्ड लिख रहे थे, सिर्फ मॉडिफाई करना है, सो इट विल बी चेंज. यहाँ पे आपको न्यू वैल्यूज देनी है, आइदर डेटा टाइप या फिर साइज. सो अभी हम डेटा टाइप दे रहे हैं, तो आपको एक डिस्क्राइब से भी पता चल सकेगा और फाइंड टेबल से भी पता चलेगा. ठीक है, ये देखो एड्रेस की साइज 20 to 30 हो गई, चेंज हो गई. नाउ वी आर गोइंग टू चेंज दिस डेटा टाइप, वेरकेर 2 को चेंज करेंगे हम. ठीक है, उसको मैं सपोज नंबर ले रहा हूँ, नंबर हो गया. क्लोज करके फिर से ओपन करना है. You can see number 22, right? But we have done 30. Total.
ये रहा precision 30 by default value they are taken, right? So ये डेटा टाइप भी चेंज हो गई। अब फिर से मैं ओरिजिनल कर देता हूँ। I want to explain something to you. Where to 30. Now in address, if I already we have increased 20 to 30 and it is allowed, it is successfully done. If I decreasing, will it allow? Yes, table alter. It means size we can decrease it on an address column, right? On address column. Yes. अगर कोई वैल्यू हो और डिक्रीज कर Same question I have. If we have a account number, right? And size of that account number is, let's say, size of account number is 5 and data type is varchar 2. Can we change the type? First, let's change the type. Number. Size उसकी उतनी रहने देते हैं 5. ठीक है? Will it allow to change the data type? No. You can read the query error. Column to be modified must be empty to change the data type. Already data are inserted in our column, so we cannot change the data type. Right? We cannot change the data type. Let's check. Can we increase or decrease the size? 5 थी तो मैं 10 कर रहा हूँ. Will it allow? डेटा है ऑलरेडी अकाउंट नंबर में. यस, टेबल अल्टर्ड, वो साइज चेंज हो गई, 10 हो गया. नाउ आई एम डिक्रीजिंग दिस साइज. पहले ओरिजिनल कर देता हूँ. ठीक है, ओरिजिनल हो गई. नाउ आई एम डिक्रीजिंग दिस साइज 5 to 3. विल इट अलाउ? फोर कैरेक्टर्स Will it allow? No, sir. Why? You see? Because, sir, if we have already inserted a value which size is 5 and then we decrease, then Okay. Got it. Good. We cannot decrease the column length because some value is too big. Already we have stored the 4-digit data into that A001, right? Yes, of course we can decrease up to the 4. यहाँ पे मैं 4 करूँ तो अलाउ करेगा क्योंकि लास्ट स्पेस सबकी एम्प्टी है तो वो करने देगा, उससे ज्यादा डिक्रीज नहीं करने देगा. सर टेबल की कैरेक्टर वैल्यू 4 है और हम वैल्यू डालेंगे 5 या 6 कैरेक्टर की तो वो कट होगा या एरर आएगा? मतलब डेटा इंसर्ट ही नहीं करने देगा. Clear? So if already data is entered, then you are not allowed to change the size. We cannot modify it, right? So this is modify keyword. So by using modify keyword with alter command, we can change the data type as well as the size, right? Next, rename a column. अगर आपको कॉलम रीनेम करनी है तो, अगर आपको कॉलम रीनेम करनी है, फॉर एग्जांपल एड्रेस जो है वो हमें पसंद नहीं है नेम, आई डोंट लाइक द एड्रेस, तो सिंपली अल्टर टेबल अकाउंट रीनेम. यहाँ तक तो कॉमन ही है, रीनेम इज द न्यू कीवर्ड. नेक्स्ट यू नीड टू राइट द कॉलम कीवर्ड. कॉलम इज द कीवर्ड. क्या करना है? कॉलम एड्रेस टू लोकेशन, दिस इज ओल्ड वैल्यू एंड दिस इज न्यू वैल्यू ऑफ कॉलम. सो यहाँ पे एड्रेस दिख रहा है, अब नया हो जाएगा लोकेशन. समटाइम्स इट हैपेंस, रन इट ट्वाइस. हो गया कुछ विदाउट चेंज. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट. हो गया लोकेशन. So by this way you can rename it. Got it? Alter table account, then rename keyword, then column is the keyword, then old value to new value. Done. By this way you can rename the column. Now next, column drop करनी है.
इफ यू वांट टू ड्रॉप द कॉलम, सो उसके लिए आपको ड्रॉप कमांड यूज होगा, अल्टर टेबल अकाउंट ड्रॉप। तो हमने अभी तक कितने कमांड सीखे, ऐड, मॉडिफाई, रीनेम एंड ड्रॉप। ड्रॉप से ये कॉलम ड्रॉप हो जाएगी एड्रेस, राइट। ओके सर। Invalid identifier, it means why it is not allowed to delete, because already we have changed the name, location, table altered. Now you can see select star from account. You can delete multiple column by using separation comma, right? comma करके ये delete कर सकते हो multiple column। so ये हो गया डिलीट करने का। नेक्स्ट इज ड्रॉप द टेबल। मैं आपको ड्रॉप टेबल, ओके, मेरे पास बहुत सारे वेस्टेड टेबल है जो मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाए थे, वो डिलीट कर रहा हूँ। सैलरी, सैलरी 1, सैलरी 2, सैलरी न्यू, ये सारे टेबल डिलीट कर डिलीट, सॉरी, ड्रॉप, ड्रॉप टेबल salary, right? So drop is the key command to drop the table। पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा, कॉलम, ऑल रोज, एवरीथिंग। so drop table सैलरी, सैलरी टेबल ये डिलीट हो गया। चेक करना है तो कैसे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी, व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा कैसे चेक कर सकते हैं, डिस्क, डिस्क। तीसरा फाइंड टेबल, ठीक है, फाइंड टेबल में देखो सैलरी चली गई। सो बाय दिस वे यू कैन ड्रॉप दी टेबल, ड्रॉप टेबल। अगर आपके टेबल में बहुत सारी मिस्टेक है तो आप ड्रॉप टेबल से पूरा टेबल डिलीट कर दो। डन। यस सर। Now next, creating a table from existing table. This is the very most important syntax। एक टेबल जो ऑलरेडी है उसमें से दूसरा टेबल बनाना है, ठीक है। अकाउंट टेबल है, उसमें से हम दूसरा टेबल बना रहे हैं। सो उससे पहले मैं आपको आई वांट टू नो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट, इससे क्या मिलेगा मुझे, पूरा टेबल, राइट। इफ आई राइट अकाउंट नंबर कॉमा सिटी, इससे क्या मिलेगा, ओनली 2 कॉलम। इफ आई राइट समथिंग हियर, वेयर कंडीशन, वेयर सिटी इज इक्वल्स टू रायपुर, एक रो आएगी। ये प्रैक्टिकल 1 में आपने किया है, ठीक है, किया है ना सबने। अब मैं आपको जादू दिखा रहा हूँ, इसका आउटपुट आपको पता है, ठीक है। एक ही लाइन में कर दूं ताकि आपको इसका आउटपुट क्या है, क्रिएट टेबल सैलरी। उससे क्या होगा, नया टेबल क्रिएट होगा सैलरी नाम का, जो आपने प्रैक्टिकल 1 में किया, ये पता है आपको। इसका आउटपुट क्या आएगा, जो भी हमने प्रैक्टिकल 1 में सीखा और अभी देखा, एज इज द कीवर्ड, एज इज द कीवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इट विल क्रिएट द टेबल सैलरी एज लाइक दिस। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट का जो भी आउटपुट आएगा, अकॉर्डिंग टू दैट इट विल क्रिएट द टेबल। सो उसके यहाँ पे सेम टू सेम होगा, क्यों, क्योंकि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट, अकाउंट टेबल जो भी है वो पूरा आएगा, राइट। देखते हैं, विद 6 रो ऑल कॉलम्स आया। अब आप बोलेंगे सर हमें नहीं चाहिए पूरा, ओनली फ्यू कॉलम्स चाहिए। तो ये तो आपको पता ही है, फ्यू कॉलम्स के लिए स्टार की जगह
सपोज अकाउंट नंबर डाल दूं या फिर सिटी डाल दूं, ठीक है, नहीं होगा, एरर आएगा क्योंकि सैलरी ऑलरेडी देयर, सैलरी 1 कर दूं, टेबल क्रिएटेड। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा? सिर्फ 2 ही कॉलम इस टेबल में होंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी 1। आ गई 2 कॉलम। ये टेबल नेम मैंने दिया ना, हाँ सैलरी 1 में इसी किया, गलत था। ओके, अब मैं पूछूं कि सारी कॉलम सारी रो नहीं चाहिए, कुछ रो चाहिए, तो यहाँ पे वेर कंडीशन आपको आता ही है, वेर अकाउंट नंबर, ओके मैं चेंज कर देता हूँ, लोन टेकन इज इक्वल्स टू जिसका यस हो उतनी ही सैलरी 2 में जानी चाहिए। ऐड कर सकते हैं, ऐड ये तो कॉलम। अलग ही टेबल हो गया ना, इसमें अगर सैलरी 2 में आपको ऐड कॉलम करना है तो अल्टर कमांड से कर सकते हैं, जो प्रीवियसली हमने सीखा। कॉपी करनी है सीधे दूसरे टेबल में से। तो ये कॉपी हुआ ना, सैलरी 1 हमने क्रिएट कर लिया, फिर अकाउंट में से फिर से कॉपी करना है क्या कॉपी करना? दूसरे कॉलम, दूसरी रो। सेम टेबल सैलरी में हाँ, तो नहीं होगा क्योंकि टेबल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो एक एक करके करना पड़ेगा। हमारे पास इसमें 2 है, हाँ। तो तीसरी रो ऐड, तीसरा कॉलम ऐड करना है। ऐड करना है तो और वो ऐड account कैसे में कर से। सकते हो? अकाउंट में से। हाँ। अकाउंट में से ऐड नहीं होगा, अगर ऐड करना है तो अल्टर कमांड ऐड से आप कर सको और फिर डेटा इंसर्ट करो, ठीक है। अगर आपको तीसरी कॉलम ऐड करनी है तो क्रिएट टेबल के साथ ही कर सकते हो, यहाँ पे तीसरी कॉलम ऐड कर दो, ठीक है। नहीं करनी है तो मत करो। ओके, ये हो गया। सपोज नाउ मुझे ये कॉलम नेम पसंद नहीं है, अकाउंट नंबर और सिटी, ये कॉलम नेम पसंद नहीं है मुझे, तो मैं क्या करूं? I can change the column name while I am creating a table from the existing table। कैसे? रीनेम टू बी नहीं, मैं सपोज अभी सैलरी 3 करके एक नया टेबल बना रहा हूँ, लेकिन मेरे नए टेबल में ये 2 कॉलम होनी चाहिए, लेकिन उसका नाम ये नहीं होना चाहिए। सपोज उसका नाम मुझे अकाउंट नंबर पूरा लिखना है और सिटी का नाम स्टेट करना है, सिटी कॉलम का। तो ये क्या होगा? यू नीड टू गिव द न्यू नेम ऑफ द कॉलम विच यू हैव मेंशन्ड हियर रिस्पेक्टिवली, अदरवाइज मिसमैच हो जाएगा। मैं पहले स्टेट लिख दूं फिर अकाउंट नंबर लिख दूं तो क्या होगा? अकाउंट नंबर का नया नाम स्टेट हो जाएगा, सिटी का नया नाम अकाउंट नंबर हो जाएगा। ऐसे नहीं, सीक्वेंस में देना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्टार कर रहे हो और सब की वैल्यू आपको चेंज करनी है, सब कॉलम के नेम, तो यहाँ पे सब का कॉमा कर करके चेंज कर सकते हो, राइट। सैलरी 3 सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी 3, तो ये टेबल में आ गया, नाम चेंज, स्टेट और अकाउंट नंबर। सो बाय दिस वे यू कैन क्रिएट अ टेबल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेबल, राइट। अब बोलेंगे सर इसमें डेटा आ रहा है, हमें डेटा नहीं चाहिए, सिर्फ कॉलम सी चाहिए, रो नहीं चाहिए, ठीक है, रो नहीं चाहिए, तो क्या करें? तो मैं सपोज यहाँ पे लिख रहा हूँ अकाउंट नंबर इज इक्वल्स टू A008, A008 है, नहीं है तो वो कंडीशन उस रो में हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब एम्प्टी। सो सैलरी 4 कैसा रहेगा? हमारे पास एम्प्टी रहेगा, टेबल क्रिएटेड, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी 4, नो डेटा फाउंड, मतलब क्या हुआ? डेटा इंसर्ट नहीं हुआ, टेबल क्रिएट हो गया। टेबल देखना हो तो डिस्क्राइब, फाइंड टेबल से भी कर सकते हो, हो गया।
ये दो रो, सो इसे नल टेबल बोलते हैं। सिर्फ स्ट्रक्चर क्रिएट करना है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेबल, राइट? एनी क्वेरी, एनी डाउट? ओके फाइन, लेट्स मूव नाउ। रीनेम द टेबल। पहले कॉलम रीनेम हो गई अल्टर कमांड से, अब पूरा टेबल रीनेम करना है। तो उसके लिए सैलरी 4 को ही मैं रीनेम कर रहा हूँ। रीनेम इज द कमांड, रीनेम सैलरी 4 टू न्यू, ठीक है? सैलरी 4 इज द ओल्ड टेबल नेम, न्यू इज द न्यू टेबल नेम। तो स्टेटमेंट प्रोसेस, so when I write select star from salary 4, is data available? No, table or view does not exist because it is already renamed. यहाँ पे नो डेटा फाउंड मिलेगा क्योंकि उसमें डेटा नहीं, सिर्फ हमने वही किया है। क्लियर? तो ये टेबल रीनेम हो गया। नेक्स्ट डिलीट, तो उसके लिए मैं पहले आपको सैलरी 3 दिखा दूँ। सैलरी 3 में डेटा है, आप बोलेंगे सर हमें डेटा डिलीट करना है, डेटा डिलीट करना है पूरा, देन डिलीट फ्रॉम सैलरी 3, 4 रो डिलीटेड, सब कुछ डिलीट हो गया, सारा डेटा। टेबल नहीं डिलीट हुआ, याद रखना, टेबल डिलीट नहीं हुआ, याद रखो। सारी रोज डिलीट हो गई, ठीक है? अब आप बोलेंगे सर कुछ स्पेसिफिक रो डिलीट करनी है, तो मैं वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। डिलीट डिलीट ब्रैकेट में जो रो, डिलीट एंड ब्रैकेट। नाउ डिलीट फ्रॉम सैलरी 2 वेयर, कौन सी रो डिलीट करनी है? वेयर अकाउंट नंबर इज इक्वल्स टू लेट्स से A005। वेयर कंडीशन से रो मिलती है ना, 2 रोज डिलीटेड क्योंकि डुप्लीकेट थी मेरे पास, ठीक है? 2 रोज डिलीटेड क्योंकि मेरे पास इस टेबल में 2 डुप्लीकेट रो थी, आपकी एक ही हो गया। क्लियर? तो by this way you can delete particular record, you can delete entire record, but structure will be there। सारी रो डिलीट हो जा रही है लेकिन कॉलम्स सेम रह रही है टेबल में, ठीक है? ड्रॉप से क्या हो रहा है, पूरा टेबल चला जा रहा है with all columns and all rows। clear up to this? any query, any doubt? so आज का ये हो गया। now you do the practice, start the practical 2 and perform all this query on account table। read the question from the practical list and perform all the queries one by one, and also maintain the word file, question and answer, question and answer, like this। okay, if it is not my requirement, it is not mandatory। if you want to add the screenshot of the result, you can। अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आई वॉन्ट ओनली क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है? उसमें पहली क्वेरी है इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स इफ यू हैव नॉट इंसर्टेड इन अ प्रैक्टिकल 1, बट वी हैव ऑलरेडी इंसर्टेड। So start from the second one। Are you getting? एक्सपेरिमेंट 1 में तो 5 क्वेरी टेबल अलग अलग में करने थे क्वेरी, सिलेक्ट वेयर फ्रॉम, तो उसका क्या है आंसर? क्वेश्चन एंड आंसर, जो भी आपको कॉलम डिस्प्ले करवानी है वो सिलेक्टेड रो एंड सिलेक्टेड कॉलम, जो भी आपको कॉलम डिस्प्ले करवानी है, जो भी रो आपको फिल्टर करनी है वो आप कर सकते हो। आंसर में क्या लिखे? आंसर में क्या लिखना है, ये जो हम अभी परफॉर्म कर रहे हैं ये आंसर हुआ ना। ओके, यही लिखे, इसको आंसर बोलते हैं ना, क्वेरी कोई। ओके, क्वेरी लिख दो आंसर। हाँ, इसे आंसर बोलते हैं। सपोज इफ आई से आई वांट टू डिस्प्ले, ओके, डिस्प्ले अकाउंट नंबर एंड सिटी ऑफ द टेबल सैलरी 2,
ये क्वेश्चन हुआ, तो उसका आंसर क्या हुआ? ये आंसर हुआ, ये आंसर हुआ। वो तो लिख लिया है। हाँ, तो मुझे लगा कुछ टेबल में से कुछ लिखना है। नहीं, ये आउटपुट हुआ उसका, ये उसका आउटपुट हुआ, वो मैंडेटरी नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट आपको लिखना है, रखना है तो रखो, अदरवाइज दिस इज आंसर एंड क्वेश्चन प्रैक्टिकल लिस्ट में मिल जाएंगे। डू यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट? हाँ सर, यस नेवी। આ પ્રેક્ટિસ 1 ને પ્રેક્ટિસ 2 એક જ વર્ડ ફાઇલમાં બનાવી કે અલગ અલગ વર્ડ ना, ફાઇલ? अलग अलग वर्ड फाइल, Okay. मेक ए डिफरेंट वर्ड फाइल फॉर एवरी प्रैक्टिकल एंड अपलोड द प्रैक्टिकल 1 पीडीएफ फाइल। वर्ड में से पीडीएफ कन्वर्ट करके वो पीडीएफ फाइल गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है आपको, ठीक है? वेरी शॉर्टली आई विल इनवाइट यू। Okay, if you have any query, any doubt, you can you may ask. I am here only.